Good morning, students. Today I am going to take your first lesson, and name of that lesson is a letter to God. You will be able to watch on this video on YouTube also. DAV MPS Bhamarmal. Today I am going to take your lesson, a letter to God. This is the first chapter of your book, First Flight, by G.L. Fuentes. First, I will explain about the difficult word meaning, and I will also explain paragraph-wise meaning of this story. Then I will come to the question answer. Okay, so here the story begins. The house, the only one in the entire valley, set on the crest. The crest means top of a hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flower that always promised a good harvest. The Okay, students, the main character of this story is Lencho. His house was situated on a top of a hill. मतलब उसका जो घर था एक पहाड़ के ऊपर था, जहाँ से आप लेंचो जो था वो अपने फसल को देख सकता था. Like you can see on the picture here, this is Lencho's house, and it was situated on the top of a hill, and these are the crops. इसको हम फसल कह सकते हैं. इसमें अच्छे फसल लगे थे. लेंचो को लग रहा था कि ये जो पक जाएंगे तो मतलब अच्छा हार्वेस्टिंग होगा, फसल अच्छे आएंगे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. मतलब थोड़ा सा ये ज़रूरत था कि जब वर्षा होती हल्का, और एट लीस्ट ए सोअर मिल्ड रेन. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो के मन में ये विश्वास था कि अगर थोड़ा सा भी वर्षा हो जाएगी तो हमारा जो फसल है वह मतलब अनाज जो है वो पक जाएंगे और अच्छा तैयार होगा. मतलब थोड़ा सा हैवी रेन भी हो जाए, या तो डाउनपोर मीन्स हैवी रेन एंड सोवर मीन्स मिल्ड रेन. और ये जो विचार थे उसके मन में मतलब आ रहे थे और वो देख रहा था. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, हैड डन नथिंग. मतलब लेंचो कुछ नहीं सुबह से किया था काम, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. मतलब आसमान में वो देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्व की तरफ. We were really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper means शाम का भोजन कहते हैं ना, evening meal, that is known as supper, replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. लेंचो बोला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. ओमेन, इस बार लगता है कि वर्षा होगी. द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी, रिप्लाइड, बोली, यस, गॉड विलिंग. इफ़ गॉड विशेष देन इट विल रेन. अगर भगवान की मर्जी होगी तो वर्षा होगी. द ऑल्डर बॉयज वेयर वर्किंग, और जो इसके जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे लोग घर के पास में ही खेल रहे थे. Until the woman called to them, जब तक कि माँ नहीं बुलाती. Come for dinner, और वो बुलाई डिनर के लिए. It was during the meal, और खाने का समय हो चुका था. Just as Lencho had predicted, उसी समय लेंचो जो है भविष्यवाणी किया. Predicted मतलब to make prophecy.
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तब अचानक जो है वर्षा होने लगी। बिग बिग ड्रॉप मतलब बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे। बिगन मतलब शुरू होना, फॉल मतलब गिरना। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." मतलब नॉर्थ ईस्ट में लेंचो देखा कि बादल मतलब बादल का विशाल विशालकाय आकार मतलब ऊपर था नॉर्थ ईस्ट की ओर, उत्तर पूरब की ओर देखा गया। कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब धीरे धीरे मतलब वर्षा के फॉर्म में बन रहा था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम धीरे धीरे बह रही थी, ताज़ी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain. अब लेंचो जो है बाहर जाता है इस ख्याल से कि मैं जाऊंगा तो मुझे वहाँ मतलब अच्छा लगेगा जब वर्षा की बूंदें हमारे शरीर पर पड़ेंगे तो। प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह लौटा तो ही मेड अ प्रेडिक्शन, मेड अ प्रोक्लामेशन, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, दीज आर द न्यू कॉइन्स, ये हमारे लिए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बड़े जो बूंदे हैं वो 10 सेंट का है, मतलब 10 रुपये का। एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, और ये जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो 5 रुपये का है। लेंचो इसीलिए बोलता है कि उसके फसल को अत्यंत आवश्यकता था पानी का। अगर वर्षा नहीं होती तो उसके फसल अच्छे नहीं तैयार होते, इसीलिए वो बोला मतलब वर्षा के बूंदे को पैसा से कंपेरिजन कर रहा है कि बड़े बड़े जो बूंदे हैं वो 10 सेंट के हैं और छोटे छोटे बूंदे हैं वो 5 सेंट के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped. The meaning of draped is covered with cloths in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, run out to collect the frozen pearls. विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब लेंचो में ये विश्वास था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, मतलब रिगार्ड कर रहा था, देख रहा था अपने फसल को कि मतलब फूल लग गए हैं और धीरे धीरे वह जो है फल में तैयार हो रहा है। ड्रैप्ड मतलब कवर्ड विथ ए क्लॉथ, मतलब ढक जाना। फूल जो है धीरे धीरे अब फल में चेंज हो रहा था। इन ए कर्टेन ऑफ रैन, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक जो है तूफान चलने लगा। एंड एलोंग विथ द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और बर्फबारी होने लगा ओलावृष्टि जिसको हम कहते हैं, हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। दिस ट्रूली रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, पहले से लग रहा था कि ये मतलब सिल्वर कॉइन्स हैं ना, चांदी के सिक्के के जैसे लग रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वे लोग खेल रहे थे, एक्सपोजिंग कर रहे थे। दे आर प्लेइंग देमसेल्फ टू द रैन, मतलब वर्षा के बूंदों से। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वे लोग जो हेल स्टोन्स जो गिरा था, बर्फबारी जो हो रही थी उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर गए। लाइक यू मे सी ऑन द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ हेल स्टोन्स एंड हियर यू मे सी इट वाज रेनिंग लाइक दिस, ऐसा वर्षा हो रहा था। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो बोला कि अब लगता है कि बुरा दिन आ गया है ना, और ये जो वर्षा जो है वो अब वर्षा नहीं रहा, अब ये तेज़ बारिश हो रही है, तूफान भी आने वाला है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे लगता है कि ये तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट मतलब जो वर्षा हो रही थी वो तेज़ी से समाप्त नहीं हुआ, तूफान और तेज़ होने लगा। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक बर्फबारी होने लगा। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मतलब पूरे घर के ऊपर भी वर्षा हुआ, गार्डन भी,
मतलब बर्फबारी से ढका हुआ था। द हिल साइड, पहाड़ी इलाका थे वो भी ढक गए थे। द कॉर्न फील्ड, फसल जो था वो भी बर्बाद हो गया था। ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सॉल्ट से ढका हुआ हो। जस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन रिसेंटली इन रामानुजगंज दैट टाइम इट वॉज रेनिंग हैविली विथ हेल स्टोन। आप लोग देखे होंगे कि रामानुजगंज में भी एक बार ऐसा वर्षा हुआ था फिलहाल, और फसल को बहुत नुकसान भी हुआ था। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब पेड़ पौधे पर एक सिंगल लीफ भी नहीं था, पत्ते भी नहीं थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब अनाज पूरा बर्बाद हो गया था फसल। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। He stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust. Locust means insect which fly in group and destroyed crops. Locust कहते हैं, you may see on the picture, this is the picture of locust. ये जो कीड़े फसल में लगते हैं तो हमारा फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रास होपर, इसको टीटा भी बोलते हैं। तो लेंचो बोला कि अगर हमारे फसल में कीड़े भी लगते तो कुछ न कुछ हमारा फसल मतलब बच जाता और बेनिफिट होता। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं मतलब कम नुकसान होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो ओलावृष्टि हुआ उससे हमारा जो फसल है वो सारे के सारे बर्बाद हो गए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस बार हमारे पास खाने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लेंचो बोला था कि हम जो भी काम किए वो बेकार चला गया, मतलब कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई है भी नहीं जो हमको मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस बार लगता है कि हम लोग भूख से मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। लेकिन लेंचो के मन में यह विश्वास था कि ओनली आई हैव होप दैट गॉड विल हेल्प अस, मुझे एक ही उम्मीद है कि भगवान हमको मदद करेंगे। बिकॉज ही लिव्ड एलोन इन द हाउस, मतलब वो घर में अकेला रहता था। सॉलिटरी मतलब अकेला, इन द मिडिल ऑफ द वैली मतलब घाटियों के बीच में। देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड, उसे उम्मीद था कि भगवान हमको मदद करेंगे। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That is what they say. No one dies of hunger. लेंचो बोला कि don't be upset, don't be sad. मतलब आप उदास न हो, कोई भी इस धरती पर आया है जो मतलब भूख के चलते नहीं मरेगा। Even though this seems like a total loss, फिर भी मुझे लगता है कि पूरा नुकसान हुआ है। Remember, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भगवान अगर जन्म दिए हैं तो उसका वे कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ द गॉड। सारी रात जो है लेंचो एक ही बात सोच रहा था कि परमात्मा हमको मदद करेंगे, मतलब गॉड जो है, गॉड विल हेल्प अस। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscious। मतलब उसके मन में ये विचार आ रहे थे ना, बुद्धि काम कर रहा था, कॉन्शस मतलब चेतन, कि परमात्मा जो है हमको मदद करेगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल। सचमुच में कहा जाए तो लेंचो जो था कोल्हू का बैल के जैसा काम करता था। एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में वो बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता भी था पत्र लिखना ना। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बेगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब अगले दिन मतलब रविवार का दिन था, डे ब्रेक था। डे ब्रेक मतलब उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं थे, वह फ्री था। ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह उसको ले जाएगा ना, एंड प्लेस इन द मेल इट वाज, और उसको मेल में ड्रॉप कर देगा, यानी कि डाल देगा।
इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और वह जो लेटर लिखा हुआ था, दैट लेटर वाज इन द नेम ऑफ गॉड, वो परमात्मा के नाम से लिखा हुआ था। और इसको मेल बॉक्स इस तरह से जब लेटर लिखते हैं तो बनाया जाता है एनवेलप के माध्यम से। यू मे सी ऑन द पिक्चर, गॉड ही रोट, परमात्मा के नाम से वह लिखा, इफ़ डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर। अगर आप हमको मदद नहीं करेंगे तो इस वर्ष हमारा परिवार और मेरे बाल बच्चे सब लोग भूखे रहेंगे और नो वन विल हेल्प अस। आई नीड 100 रुपीज़ पीसोज, हमें 100 पीसो की आवश्यकता है। पीसो दैट इज़ द करेंसी ऑफ मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिकन कंट्री का ये करेंसीज है पीसो ना, जैसे हम लोग यहाँ इंडियन में कहते हैं रुपीज़। तो ये लेंचो जो है 100 रुपये डिमांड किया ना फ्रॉम द गॉड, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मतलब खेत में बीज डालने के लिए। अगेन एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और अगले बार जब फसल होंगे तब तक भोजन का व्यवस्था करने के लिए। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि बर्फबारी जो है कुछ भी नहीं छोड़ा। और इतना लिख करके वो डॉट डॉट करके स्टॉप कर दिया। यू मे सी ऑन द पिक्चर हियर, ये जो देश का नाम इंडिकेट कर रहा है ना मैप में, यहाँ लोग रुपया को पीसोज बोलते हैं। ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है ना। ओके, ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। अब वो लेटर को गॉड के नाम से लिखा ऑन द एनवेलप, मतलब लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर पत्र को रखा। एंड स्टिल ट्रबल, अभी भी कन्फ्यूजन में था। ही वॉज इन ग्रेट कन्फ्यूजन दैट गॉड विल हेल्प अस और नॉट, भगवान हमको मतलब सहायता करेंगे या नहीं। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उस पर स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। यू मे सी ऑन द पिक्चर हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ मेल बॉक्स एंड लेटर दैट इज इनसाइड द एनवेलप। इस तरह से वो बना करके और मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब एक एम्प्लॉई जो पोस्टमैन के रूप में काम कर रहा था ना, was a postman and also helped at the post office, और वो सहायता भी करता था। went to his boss, बॉस के पास गया। बॉस मीन्स हियर हेड। लाफिंग हर्टली, मतलब हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो दिखाया परमात्मा के नाम से एक पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब उसके कैरियर में कभी भी वो ऐसा पत्र नहीं पाया था। हाँ, दिस वाज अ लेटर, ये लिखा हुआ था लेटर्स टू गॉड। और हियर यू मे सी द स्टाम्प, और ये मेल बॉक्स है ना। द पोस्ट मास्टर अब फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था फैट था, मोटा था, एमिएबल था मतलब फ्रेंडली नेचर का। हैविंग ए प्लीजेंट और फ्रेंडली मैनर फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक जो है वह उसके मतलब मन में विचार उत्पन्न हुए और वह गंभीरतापूर्वक सोचने लगा। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। मतलब उस व्यक्ति में भगवान के प्रति कितना आस्था है कि वो इस पत्र को परमात्मा के नाम से लिखा ना, परमात्मा को कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. उसको लगा कि ये जो मैन है उसका भगवान के प्रति जो आस्था है वह नहीं टूटे ना। उसको बचाए रखने के लिए, आस्था को बनाए रखने के लिए उसके मन में एक विचार हुआ।
आंसर द लेटर, वो सोचा कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसको लगा कि इंक और पेपर का तो आवश्यकता है, इसके अलावा हमें और चाहिए इस पत्र के जवाब देने के लिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था ना, लेंचो है डिमांडेड 100 pesos फॉर हेल्प, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब डिसीजन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब उस पत्र के जवाब देने के लिए वो अपने एम्प्लॉई कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद अपना वेतन का भी पैसा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और लोग, दोस्त लोग जो थे वो भी डोनेट किए। चैरिटी मतलब डोनेशन, और कुछ पैसा वो इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर 100 pesos। उसके लिए 100 रुपये इकट्ठा करना बहुत मतलब असंभव था, इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसीलिए वह जो है आधा से कुछ ज़्यादा पैसा भेजा, लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उस पैसा को मतलब एनवेलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का उसमें एड्रेस लिखा गया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। और उसके ऊपर, एनवेलप के ऊपर गॉड का नाम से सिग्नेचर किया गया। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर। अगले दिन सुबह जो है लेंचो अर्लियर आता है। अर्लियर मतलब प्रातः, अर्ली इन द मॉर्निंग। देन यूजुअल मतलब पहले देर से आता था और अब उस दिन पहले आया ना। टू फाइंड द लेटर फ्रॉम द गॉड मतलब भगवान के नाम से जो पत्र आया था उसको लेने के लिए। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postman of a man who had performed a good deeds looked on from his officer, experiencing the contentment. इफ़ देर वाज अ लेटर फॉर हिम, लेंचो जो है मांगता है कि मेरे नाम से कोई पत्र है ना। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन खुद उसको देता है हाथ में। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड। उसको लगता है कि ये जो पोस्टमैन जो है मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। डीड मतलब वर्क। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिसर, वो अपने ऑफिसर को देखता है ना, अधिकारी को, मतलब कर्मचारी को। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब संतोष, सेटिस्फेक्शन। लेंचो को लगता है कि भगवान जो है हमको सहायता करने के लिए 100 pesos भेजे हैं। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब लेंचो जो है उसके मन में ये मतलब वो खुश नहीं रहता है, बल्कि वो मतलब नाराज रहता है। एंगर, स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। उसके मन में मतलब वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया था। एंग्री मतलब लाइक दिस यू मे सी ऑन द पिक्चर हियर ना, ये जो पिक्चर है वो नाराजगी का है। बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो जब पैसा गिना ना तो नाराज हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको लगा कि परमात्मा जो है कभी गलत नहीं कर सकता है। नोर कुड ही हैव डिनाइड, और ना तो वो देने से मुकर सकते हैं, मतलब इनकार कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो भगवान से पैसा डिमांड किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वह तुरंत खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लेने के लिए। इंक मतलब पेन, लाइक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पब्लिक राइटिंग टेबल होता है उस पर रख करके लिखा। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब रिंकलिंग मतलब भौं को सिकुड़ना ना, रिंकल मतलब झुरी पड़ जाना। काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसके मन में ये विचार हो रहा था कि भगवान को मैं कैसे लिखूं ना, क्या पत्र में लिखूं कि वो मेरे लिए सारा पैसा भेज देंगे। क्योंकि
लेंचो हैड फाउंड ओनली 17 पीसोज, उसको मात्र अभी 70 पीसों ही मिला था ना। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडोज, जब लिखना वो ख़त्म कर दिया ना, व्हेन लेटर वाज कंप्लीटेड विद द नेम ऑफ गॉड, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई स्टाम्प, मुहर परचेजिंग करने के लिए, विच ही लीक्ड, जिसको वह गीला करता है, लिक्ट करता है मतलब चाटता है, एंड देन एफिक्स्ड, और उसको चिपकाता है, पेस्ट करता है, एफिक्स्ड मतलब पेस्ट, टू द इन्वेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब वो मुक्का मार के, मुक्का से वो धक्का लगाता है, ब्लो करता है और स्टाम्प को पेस्ट करता है, एज यू मे सी ऑन द पिक्चर हियर ना। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जब पत्र मेल बॉक्स में गिरता है ना, डाला जाता है, मोमेंट मतलब शॉर्ट टाइम, फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो है उसको ओपन करने के लिए जाता है, ओपन इट मतलब खोला, इट सैड, उसमें बोला गया था, लिखा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैं आपसे मांगा था, ओनली 17 पीसोज रिच्ड मी, मेरे पास मात्र 70 पीसोज ही मिले, सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी पैसा था उसको भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इन पैसों का मुझे अत्यंत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा ना, पोस्टमैन ये जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये जो पैसे हैं उसको नहीं भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि यहाँ का जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये लोग बेईमान हैं, क्रूक्स मतलब चीट्स, धोखेबाज, बेईमान ना, लेंचो, इस तरह से लेंचो जो है पत्र लिखता है ना। तो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन, नाउ you may say that what will be the moral teaching of this story. The moral teaching of this story is that लेंचो had great faith in God, वो उसे मतलब भगवान में बहुत आस्था था ना, और वो चाहता था कि भगवान हमको हेल्प करेंगे ना। तो उस परमात्मा का मतलब ईश्वर के प्रति मतलब लेंचो का जो आस्था था वो टूट ना सके, इसके चलते जो है पोस्ट ऑफिसर लोग यानी कर्मचारी लोग उसको मदद किए ना, एज यू मे सी ऑन द पिक्चर हियर। नाउ योर लेसन कम्स टू एंड, थैंक यू फॉर watching this video. Now for more videos subscribe to DAV MPS Bhawarmal. Thank you.